हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू डे 81। ऑफ कोर्स प्रीवियस हमारे अटेम्प्ट में थोड़ा सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम कि नेटवर्क किसी का भी स्टेबल नहीं चल रहा है। बट आई डेफिनेटली होप इट वर्क्स आउट प्रिटी well now. So firstly, welcome to all the audience members. Thank you for coming. And Mr. Sen and Aditya, thank you to you two for coming as well. And of course आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है विश्वास गुप्ता, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ फार्म्स टू फैमिलीज। एंड you know what, I think kyunki we are going to talk about agriculture, which is the backbone of India. I don't think I would be able to just do justice to Vishwasji's profession, his work, if I give his introduction. So Vishwas sir, thank you so much for coming. Thank you for taking the time to speak with us. Welcome to our podcast. अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप में अपने खुद के शब्दों में एंड एड्रेस द ऑडियंस, ओवर टू यू। Right, Mr. Saman, thank you so much once again. And thank you to Pro Bono to invite me here to introduce myself to farms and families, to provide me at this platform to, to introduce ourselves. So, farms and families is a place, basically a one aggregate platform where we are creating a bridge between farmers and the families, right? We take a land from the farmers, we then sublease it to the families as per their family size. Then, as per their taste and requirement, we plant seeds and whatsoever produce that we deliver every fifth day. And this platform is basically a one gaming form of Farm Relay. So we are taking that virtual world game into real world. The plus point is this, like you can see, what kind of a process we are using for the farming and everything, every single step you can monitor it. So basically, so this is all about the farms and families. Yeah. So over ना to you, Mr. Samar. विश्वास जी, एक हमने बिफोर ब्रेकिंग ऑफ इन द प्रीवियस वन दो, और आप जो पिछली बार आप बात कर रहे थे, वन स्पेसिफिक टर्म जो मैं पकड़ना चाहता हूँ, दैट गेमिंग। अभी आप बोलोगे ये कोई फार्म सिमुलेटर तो नहीं है जो कि 2014 में हम फेसबुक पे खेलते थे। दिस इज़ रियल लाइफ, बट यू Right. टर्न योर प्रोफेशन इनटू अ गेम, यू टर्न एग्रीकल्चर इनटू अ गेम जहाँ पे कस्टमर कैन बी अ प्लेयर। सो आप एक्सप्लेन Right. कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि व्हाट इज दिस गेम एंड हाउ कैन यू बी अ प्लेयर। Yeah, sure. So, like, if you want to become a player of this game, so like you simply need to join it, and there's some subscription fees. Like like you have to subscribe a one piece of land. Then only you will be able to play this game, right? And there will be a proper a list of a vegetable. We take a like your whole year of requirement. आई थिंक विश्वास जी का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। विल जस्ट इन द मीन टाइम विल वेट फॉर विश्वास जी टू कम बैक। We will plant. हाँ विश्वास जी, या आई गेस यूर बैक। ओ But just to kind of talk about agriculture. So, Mr. Sain, have you had any experience with agriculture? Because uh, we have always discussed what a diverse career that you've had experience in telecom, in water and sanitation, in public health, I and got research. I got saved by the bell. I'm so So sorry. no That issues, no again, issues, no issues. just because of a I one think call. network problem has been the norm for today. No problem Yeah, विश्वास right. जी। yep, the gaming model। Yeah. So as I was telling, so this is a basically a one gaming platform where you just simply need to log in it, and there's a few activities which will give it to you to just play it, and to make it more interactive, so that your child and like other people can also enjoy it by playing this thing, and your child can also learn about the farming. Right. So this is kind of, and also you will, once you'll complete your task, you'll get some points, and those points you can redeem it also. So that's how, like, the gaming things work. और विश्वास जी, एक ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि Right. आजकल का ट्रेंड जो है वो कि एग्रीकल्चर से दूर जाना है। ऑफ कोर्स देर आर अ फ्यू स्टार्टअप्स, देर आर young people who want to get into agriculture, लेकिन the general consensus is walking away, getting a stable job
and earning well and settling in a good city and buying a house and whatnot. तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आए कि गोइंग बैक टू आवर रूट्स, वो अगर आप स्टोरी बता सकते हो अपने आप की। स्टोरी तो खैर वैसे तो सामा जी जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है ऑलरेडी. I've already told you about my story, so how I came into this venture. So there was a one time कि like जब मैंने अपना this पहला स्टार्टअप जो मैंने स्टार्ट करा था, so that was एडवर्टाइजमेंट में था. एडवर्टाइजमेंट से करते करते फिर मैं एक इंस्टीट्यूट था ट्राउंस एजुकेशन जो कि लखनऊ के अंदर है. मैंने उनके बरेली और हल्द्वानी 2 इंस्टीट्यूट थे जिनको टेक ओवर करा था. फिर मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी. वो गलती ये थी कि मैंने अपने कज़न को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करा. तो जैसे ही मैंने उसको इन्वॉल्व करा फिर बहुत सारी चीज़ें, फैमिली मैटर्स बहुत सारे ऐसे हुए कि मुझे अपना बिज़नेस छोड़ना पड़ा. अपना बिज़नेस छोड़ के मैं काफ़ी टाइम तक मैं फिर पहाड़ों पे चला गया कि लाइक मुझे कुछ पता नहीं था उस समय करना क्या है क्या नहीं. तो मैं काफ़ी टाइम ऐसे ही रहा, थोड़ा लाइक सेम काइंड ऑफ थोड़ा बाबा टाइप से. तो वहीं पे मंदिरों में ही रहना, आश्रमों में रहना, तो वहीं पहाड़ों पे ही रहता था. तो कई सारे ऐसे आश्रम थे जहाँ पे मैं भटकता रहता था. उस समय काफ़ी आश्रमों में रहा. तो वहाँ पे होता था कि लाइक जब मैं पहाड़ों पे था तो उस समय मैं क्योंकि दिन भर खाली होता था, मतलब या तो मैं झाड़ू पोछा लगाता था या फिर पेड़ के नीचे बैठा रहता था. तो वहीं पे खेत वगैरह थे सीढ़ी नुमा, तो वहीं पे जाके उस समय धान की रुपाई हो रही थी जिस समय मैं वहाँ पे रहता था. तो वहीं पे मैं खेत में जाके मैं किसानों से बोलता था कि लाइक मुझे भी अलाउ करो, लाइक मुझे भी दो आपके खेत में, मैं जो है थोड़ा बहुत धान वान लगा लूँ, काम करता था. वहीं से कहीं ना कि वो रूट ना, जो स्टीव जॉब्स ने एक बार बोली थी ना कि कनेक्ट द डॉट्स, जो उन्होंने 2 वर्ड्स बोले थे, कनेक्ट द डॉट्स एंड स्टे हंग्री स्टे फुलिश. तो कनेक्ट द डॉट्स वही कहीं ना कहीं एक वो डॉट क्रिएट हो गया था. फिर मैं वापस आया, मतलब 2-2.5 महीने बाद फिर मैं वापस आया नोएडा में आने के बाद में आई स्टार्टेड माई जॉब स्टार्ट करने के बाद में फिर मुझे कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल चीज़ थी, जो नेचुरल चीज़ें जो मुझे खाने को मिल रही थी वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था यहाँ पे. तो मुझे लगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए. तो मुझे लगा कि यार चलो लाइक आई वाज मोर इनटू सैलेड एंड ऑल. तो मैं बाहर से खरीद के लेके आता था, मैं स्टडी करता था कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, क्या बनाना है, किसके क्या बेनिफिट है. जब वो स्टडी कर रहा था उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जितनी मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मैं इम्यून लाइक केमिकल वाली चीज़ें खा रहा हूँ जो कि इम्यून सिस्टम को वीक बनाती हैं. तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे हेल्दी खाना है तो हेल्दी खाने के लिए मुझे खुद उगाना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद के लिए उगा सकता हूँ तो वाई कैन आई कैन नॉट ग्रो फॉर अदर्स. देन फिर वहाँ से फिर आई डेवलप दिस आइडिया कि लाइक कि दूसरों के लिए करा जाए. और अगर आजकल का अगर टाइम देखा जाए, एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कि जो कोविड-19 जो वायरस जो भी चल रहा है इस समय, जो एक वैश्विक में बीमारी चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग जो है इससे संक्रमित हो चुके हैं, कई लोगों की डेथ हो चुकी है. बट इंडिया में फिर भी डेथ रेशियो बहुत कम है. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पे डेथ रेशियो कम होने के पीछे रीज़न ये भी कि हम लोगों ने बचपन में हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से आज हमारी जो जीन्स हैं, हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, दैट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, राइट. एंड लेकिन अब जैसी चीज़ें आ रही हैं इस समय, जिस तरीके से केमिकल वाली चीज़ें आती हैं या ये जो फास्ट फूड वगैरह जो चीज़ें आ रही है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत वीक बनाते हैं. सो मैं तो खैर अगर जो भी अभी सुन भी रहे हैं उन सब से भी मैं बोलना चाहूँगा कि हेल्दी खाओ, सेफ रहो, ऑब्वियसली डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो, बट साथ ही साथ अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, थोड़ा केमिकल वाली चीज़ों से बचिए जितना हो सके, और घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा. ऐसा मेरा मानना है. और विश्वास जी, ये भी है कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, ज़्यादातर विक्टिम में ये भी पाया गया था रिसर्च किए कि लो इम्यूनिटी के वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है टू जी कॉन्ट्रैक्ट नॉट बिल्कुल. ओनली कोरोना वायरस बट कोई भी बीमारी. तो आई थिंक व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर हैविंग गुड इम्यूनिटी, सॉरी बैड इम्यूनिटी? ईट गुड फूड, गेट गुड इम्यूनिटी, स्टे सेफ. सिंपल. हाँ, मतलब एक बस छोटा सा इंसिडेंट अभी मैं एक दिन अपने क्लाइंट से मैं डिस्कस कर रहा था. तो ऐसे ही पहले अगर किसी को कोई याद हो तो गांव में क्या होता था, एक टपका आम होता था, जो आम जो पक जाता था वो गिरता था तो लोग बच्चे दौड़ के उसको खाते थे. और जिस आम में तोता चोंच मार देता था उसको बोलते थे वो आम बहुत मीठा होता है.
आज के टाइम पे अगर वो चोंच मारा हुआ अगर आम किसी को दिया जाए तो आई होप लोग प्रेफर नहीं करेंगे खाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे, लेकिन आज हम खाने से पहले हम लाइक ना हम सुंदर चीज़ें ढूंढते हैं। आम सुंदर होना चाहिए, सेब अच्छा होना चाहिए, इसीलिए वैक्स लगा के लोग बेचते हैं, क्योंकि हमने अपनी उम्मीदें वैसी बना ली हैं। हमें केला चाहिए लाइक ना कि एकदम पका हुआ, तो आप जानते हैं जैसा कि यहाँ पे अगर एनसीआर की बात करें, केला आपका जनरली बाहर से आता है, उसको पकाया जाता है ना। ऐसे तरबूज मीठा चाहिए, तरबूज के इंजेक्शन लगाया जाता है। आम आपको एकदम पीला चाहिए तो उसको भी केमिकल्स वगैरह डाल के उसको भी पकाया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। राइट। और विश्वास जी, गाइस मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई थिंक हमने थोड़ा बहुत टच कर लिया है, जो कि आज का टॉपिक है, हाउ हैज़ एग्रीकल्चर बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर। और मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, जो कि सत्या मित्रा का कमेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नाउ डेज इन ट्रेंड स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज बट नाउ in India as well. The key for second of our topic, the new trends in agriculture. और विश्वास जी, वन आई गेस स्टार्टिंग में डिस्टिंक्शन रख लेते हैं। आकाश जी का, आकाश सिंह, ऑफ कोर्स यू नो हिम। आकाश सिंह का, गाइज अगेन आई रिकमेंड यू गो बैक एंड वॉच आकाश सिंह पॉडकास्ट, वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंफॉर्मेशनल एंड वेरी इंस्पायरिंग। आकाश जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, ग्रेट इंस्पिरेशन, प्लीज टेल मी, are you selling land or are you selling vegetable? Right. So, Mr. Akash, vegetable is my second product. Like my primary product is like land. So we charge as per the land only. Like जितना जमीन का हिस्सा हम आपको देते हैं, हम उसका चार्ज करते हैं, उस पर हम सर्विसेज देते हैं अपने फार्मिंग की, और उससे जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट हम आपके यहाँ डिलीवर करते हैं। तो अगर आप देखें, सो लाइक आई एम गिविंग अ वन एक्सपीरियंस बाय गिविंग यू लैंड और फार्मिंग एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस देते हैं आपके अपने ज़मीन, अपने खेत की ज़मीन की टूटी हुई सब्जियां खाने का, उसको देखने का। तो बेसिकली मेरा अगर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो माय प्रोडक्ट इज़ माय लैंड, व्हाट आई एम गिविंग, एंड माय सर्विसेज। वेजिटेबल इज़ माय सेकेंडरी प्रोडक्ट। ओके, एंड जैसा कि पहला एक जो क्वेश्चन आया था कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल काफ़ी ट्रेंड में है, सो दिस इज़ राइट। ऑर्गेनिक वैसे तो अब ट्रेंड में आ गया, ये हमारी ही एक चीज़ थी जिसको हम बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे थे। एक स्टोरी है, वैसे तो एक बहुत छोटी स्टोरी है कि कैसे स्टार्ट हुआ था ये हरित क्रांति जो आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे। तो उस समय क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवान इसलिए क्योंकि उस समय चाइना बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही थी हमारी, और उसके लिए मतलब लाइक लोग चाहिए थे, और घर यहाँ पे अपने देश में उस समय खाने की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने नारा दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में हैं। उस समय ये यूरिया वगैरह इंट्रोड्यूस करा गया था, बट हमने इतना नहीं सोचा था कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे इन सब चीज़ों में कि आज हमारी चीज़ें केमिकल पे ही पैदा हो रही है। अगर आप दो स्टेट के नाम सुने, पंजाब और हरियाणा, जो कि जहाँ की बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरीज़ हैं इस समय कि कितना बुरा सीन चल रहा है वहाँ पे लाइक कैंसर के पेशेंट्स किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली लाइक नाउ पीपल आर लर्निंग अबाउट, अब लोगों को समझ में आ रहा है, पीपल आर कमिंग बैक टू दिस ऑर्गेनिक थिंग। तो अभी अच्छा है, द मार्केट इज़ रियली गुड। जो जितनी जल्दी उतर जाएगा इस मार्केट में, उसको उतनी जल्दी बेनिफिट होगा। ब्यूटीफुल। और विश्वास जी, आई एब्सोल्युटली वांट टू टॉक मोर अबाउट योर टाइम यू स्पेंड एट आश्रम, जो कि आपने हमारे क्लास में भी। और गाइस, विश्वास जी इज़ वर्किंग विद अस with Pro Bono and Udyam in the entrepreneurship program that we are running with students of ITI। और उनके स्टूडेंट के इंटरेक्शन के थ्रू हम भी बहुत सीखते हैं। ऑफ कोर्स मी पर्सनली आई डू लर्न अ लॉट। और इनके आश्रम में स्पेंड किए हुए मेमोरीज और वहाँ के टाइम से बहुत सीखने को था। ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट टाइम भी देखना है, एंड आई हैव टू मेक अप फॉर द टाइम दैट वी मिस्ड आउट एंड वी स्टार्टेड लेट। So without any further ado, I want to hand it over to Mr. Sen. Mr. Sen, over to you. Okay, good evening, namaskar, welcome back. So Vishwas, what is your business model? I understand that you're taking a primary lease from the farmers, and then you're subleasing to the people who want to buy it through a gaming
platform, and the people who have subleased it are getting a produce as well. But how does the business model work? So, so if I'm correct, like if I got your your question correctly, so what we do, as I said, like like we take a land and then we sublease it to the family. Like supposedly, if you're my client, for example, so I'll come to you and ask you, sir, like how many members in your family? So you like supposedly if you say like two or three or like four or five. So because actually we have done studies on this, so like I know very well how much land would be sufficient for you. So as per your family size, I'll dedicate some piece of land, and then as per your requirement. So we made a proper system for this. Like we'll ask you the few like all detail, like what kind of a vegetable you prefer to have in a whole year, right? So accordingly, first I'll take all the requirement, then seasonally we'll design your land. So there's a like two-way we are monitoring your land, so like virtually and physically. So physically, so like we appoint supervisors on the land, so that physically they monitor it, they guide to the farmers, how to do and when, like where to put what plants, what seed like he need to put it. So physically, like my supervisor will be there, and virtually, obviously, because the cameras are there. So me and my clients, they can also like monitor it like 24/7 whenever they want it. So and then like every fifth day, like whatsoever we produce from that particular land, like we will plug it and we'll deliver it to you. So this is how, and we charge as per the family, we charge as per the land size only. So like if I say like in Gurgaon, like 1,000 square feet of area, we charge like 5,000 rupees, and for 500 we charge 3,000 rupees. So this 3,000 and 5,000 is what, per month or per year? Per month. That's include like whole month vegetable, packaging, delivery, everything into this only. Great. So what does the farmer get? So farmers, like we share some percentage with him, like whatever we get it. So we share some percentage. In fact, like we came up, we are introducing one more idea where, like if supposedly the land owner is a woman, so we like to promoting woman empowerment, we are giving a 2% of extra. So whatever the revenue we are sharing, so like if the landowner is lady, so we are giving a 2% of extra revenue in sharing. So so let me understand this. So what you're doing is you are enabling the farmer to farm without the farmer taking a loan from the bank or somewhere else. Right, absolutely. And So, you're also enabling the farmer to cut out the middleman, the mandi, and sell and get a better price for the vegetables he or she produces. right, absolutely. So when we take a land from the farmer, so first we insure it for the lease amount, right? Okay, like definitely you'll get some lease amount. Right? Then we provide the seeds and the fertilizer so that farmer don't need to pay for that. We take care of it. So in short, like if I say, so I first like somewhere I'm ensuring the farmer's income by giving a lease amount, and second, like because he don't need to invest anything like for the seeds and fertilizer, he just need to invest his own like labor or like his own working thing. That's it. Like he just need to work on the land. So let me understand this again very well. So I am a farmer, right? I've got 1 acre of land. Okay. Now you go to Aditya and you go to Samant and you figure out what sort of vegetables they eat over the year. And you find out that, okay, Aditya, you'll need half an acre for the vegetables that you eat. And Samant, you will need close to 1 acre for the vegetables you need. Right, like but apna half a acre and 1 acre, if you're saying so, like that is a too much, like like. Okay. Let's put a context to it. पूरी society को खिला सकते हैं सावन फिर. No. I have 1,000 square feet of land. I am a farmer.
Okay, 1,000 square feet. Okay. that's Mhm. reasonable. For a four-member family, this is reasonable. Right. So now Aditya says, I eat all these vegetables or whatever it is, and I need this for the year. So you do a calculation, you put it into your algorithm or whatever, Right. and it comes out that for Aditya, you need 500 square feet to produce that. Mhm. Now, someone says, I eat so many things for my family for the whole year. You put it into algorithm, and it comes to 1,000 square feet for someone. Mhm. Now, how does this work? Like how does like it works? So like we as correct me if I'm wrong, right? Like what you're asking, what I'm getting. So it'd be like so like as the Samant has given you the requirement, then Right? that requirement will come to farms to families. My supervisor will he will design the land. He'll share a one design with you because you're the farmer. So my supervisor will tell you, like what to and how to and how in what quantity you need to plant. So accordingly you'll plant and then like you will do the farming and you'll take care of the land. And after like 2 months or like 2.5 months, whatever, so like the plant will started to grow. And once it will be started to grow, we like you will pluck it and you'll create like a big bag bana loge and then farms of families will collect that bag and will deliver it. So is that you're asking or like Okay, something no, no, no. else? What I'm saying is now there is a constraint. So I have 1,000 square feet. Uh, someone's requirement needs the whole 1,000 square feet, and you described. Okay, सर so पहली चीज तो like 1,000 स्क्वायर फीट इज अ वेरी स्मॉल like ना अगर हम एकड़ की बात करें so the like generally we started with the 1 acre and 1 acre is like 43,500 square feet. okay. So yeah. So basically, you will have 1 acre from me, 1 acre from somebody else, 1 acre from somebody else. Based on that acreage, you will sublease. So someone can get a sublease of part of my land and a part of a second person's land. नहीं Is that possible? आप ही की लैंड से ही can book a one like एक Okay, लैंड so the आप sublease happens only from one piece of land. right. Okay. And then you do all the packaging, handling, planting, everything has been done. So me as a farmer, I'll get a lease rent for the year or whatever it is that you come up with, which is X. And I get a Y percentage of the revenue share that Right. Samanth is going to pay you, Mm-hmm. right? Exactly And sir. all I have to do is make my land available to you and uh, farm the land and all that thing. But now, if I have to, as a farmer, if I have to engage laborers, Mm-hmm. how that happens? Who pays for that? Huh, so like so like as I said, like I'll share some percentage, which is a very good amount. We can easily manage labors. So That's how like basically, what you're saying is, so the share of the revenue is yeah. towards the cost of farming, which Hmm. will include labor cost and everything. Exactly. But farms to families will provide the seeds, the fertilizer, the whatever it is to be given, and all of those things that are there. Right. Right. So basically, the banks are not in the game No. for loaning. No. The mandi is not in the game to squeeze the farmer. 20 kg onion को 20 रुपए kg मिलता है वो 20 पैसा kg मिलता है वो twist of the hand has been reduced. Right. And the farmer is also saving on wastage Hmm. because That's a the lot best of one. lot Yeah. of vegetables get wasted on the field. Right. They get rotten on the field. It doesn't move from the field itself. Right. Right. You are saying very well, and that is why we are introducing two technologies here, which is called zero waste land production and recycle farming. So these are the two technologies, of a So why farming. don't we learn a little bit about the technologies? Yeah, okay.
because actually, this is a very short time spam also, and Very quickly. okay, all right, Take a all right. minute. Your time Yeah, starts sure, now. sure. Why not? Why not? Okay, zero waste land production is like मैं थोड़ा अपने किसान भाइयों को थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी जैसे मान लिया कि हमें भी पता चला कि अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अगेन जैसे कि ऑर्गेनिक कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सेम वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हमारे ही पूर्वज कभी इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया करते थे, जो कि आज हम भूल चुके हैं, या हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो आज कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आज हमने एक खेत लिया, एक खेत में हमने एक तरफ से बैगन लगा दिया, आलू लगा दिया, कोई चीज़ ऐसे लगा दी, तो इसी के साथ हम प्लान करते हैं। अब सपोजिंगली कि लाइक मैंने एक लैंड मैंने एक एक्वायर करी, ठीक है, और मैंने सोचा कि यार इसमें ना 25 फैमिली हैं और 25 लोगों को 1-1 किलो आलू चाहिए होगा, तो 25 किलो चाहिए होगा। मैंने 25 किलो मैंने जो है उसको प्लांट कर दिया, वहाँ पे लगा दिया। अब प्लांट उस चीज़ को ग्रो होने में तो टाइम लगेगा। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे 25 में से 10 क्लाइंट ने मना कर दिया, राइट, कि मेरे को ये चाहिए ही नहीं, या राइट। तो अब अगर मान लिया 10 लोगों ने अगर मना कर दिया, तो मेरा 10 किलो का अब आलू का क्या होगा, वो एक वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए पहले ही रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और उस तरीके से हम उसको प्लांट करते हैं वहाँ पे, सो दैट कि जो भी हम प्लांट कर रहे हैं हर एक, और उसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, उनके नीड के हिसाब से मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, जिससे कि अगर मान लिया किसी एक चीज़ की अगर वैल्यू कम हो भी जाए, तो वो दूसरी जगह पे जो है, या दूसरी सब्जी जो है उसको कंपनसेट कर सके। जरूरी नहीं, अगर मान लिया मैंने आलू ही आलू लगा दिया और वो अगर उसका उस सीजन में अगर रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरे पास अगर प्याज है या उसके साथ में मैंने कुछ और लगा दिया, जैसे बीच में अगर मैंने शिमला मिर्च लगा दिया, ठीक है, जैसे आप क्यारी होती है ना, अब मैं आपको थोड़ा बताऊं, जैसे कि अगर आलू की आपने मेड़ लगाई, ठीक है, आलू की एक मेड़ आपने लगा दी, ठीक है, आलू की मेड़ के बगल में फिर आप छोटा सा एक स्पेस छोड़ते हैं, फिर दूसरी मेड़ बनाते हैं, इसी कैसे मेड़ बनाते, मेड़ के बीच में आप कोई और वेजिटेबल डाल सकते हैं छोटी, ठीक है, या फिर जो पेरिफेरी है आपकी आपकी जो लैंड की जो पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी पे आप कुछ तरीके के प्लांट, जैसे कि आपका हो गया केला हो गया, ठीक है, या पपीता हो गया, इस टाइप की चीज़ें अगर आप लगा, वो बाउंड्री भी आपका बना देती हैं। सो आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करनी चाहिए उस लैंड को, कि उसमें आप एक तरीके के नहीं कई सारी तरीके की चीज़ें आप लगा सके। तो इसे कहते हैं लाइक प्रॉपर्ली आप एक तरीके से, ये मैं छोटे छोटे सब बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो इसे बोलते हैं जीरो वेस्ट लैंड, कि लाइक आपने कोई भी लैंड को अपने वेस्ट नहीं होने दिया, प्रॉपर्ली आपने वेल डिजाइंड करा उस लैंड को, रिक्वायरमेंट को समझ के, एनालाइज करके, क्योंकि हम कई बार हम गलती कर जाते हैं, हम आज के सिनेरियो को देख के हम प्लांट करते हैं, फ्यूचर के सिनेरियो को नहीं देख पाते हैं कि ये जब तक तैयार होगी ये फसल 3 या 4 महीने बाद, तब क्या होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है इसमें। तो दिस इज फॉर जीरो वेस्ट लैंड। एंड रिसाइकल में क्या होता है कि लाइक हम उसके साथ ही साथ, जब जैसे मान लो क्योंकि आपने अलग अलग क्रॉप लगाई हुई है ना, सो वो अलग अलग टाइम पे तैयार होगी, तो जैसे ही वो तैयार होती जाती है उसके पैरेलली वी विल स्टार्टेड, हम कुछ दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें, छोटी सी चीज़ है। हमारे किसान भाई बहन कई बार वो करते हैं कि लाइक वो रूटवेटर चला देते हैं उस पर, खेत पे एक साथ एकदम से खेत बराबर हो जाए। रूटवेटर चलाने का एक नुकसान एक ये होता है कि ऑर्गेनिक खेती में केंचुओं की बहुत अहमियत होती है, और जब आप रूटवेटर चलाते हैं तो केंचुए क्योंकि सरफेस पे होते हैं वो कट जाते हैं, काफ़ी केंचुए मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि हम रूटवेटर अगर ना चला के, अगर आप हाथ से अगर चीज़ें करेंगे, ठीक है, मतलब मिट्टी को अगर हाथ से अगर आप सजाएंगे अगर उसको, तो वो मिट्टी आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो उसको पूरा टच मिल रहा होगा, आपकी फील मिल रही होगी। तो रूटवेटर ना चलाओ, मशीन से थोड़ा सा बचो, थोड़ी बहुत यूज़ करो, बट समझ के थोड़ा सा क्या यूज़ करना है, कैसे। सर, That's brilliant. लाइक That's absolutely brilliant, because what it tells us is there is a certain proper planning of that piece of land, so you can get the optimum productivity. I didn't say maximum. राइट Maximum productivity would require a lot of other hazardous things happening which you don't want. राइट So basically, what you're getting is the optimum produce from the land.
Right. which is brilliant. Now, I will leave Aditya to ask the question on the topic for the today. Sure. Aditya, so sorry. No, क्योंकि the topic has come up because Mr. Sen has asked about how, if I have a land, how can I get into the system? How can I be a part of this of your organization? Satya Mitra ji का एक comment है, or actually a question. He asks, here I have one query. If one arranges 1 acre of land and get into organic farming, so how can I get into this agreement with your organization? सिंपली लाइक आप मुझे कॉल कर लो, है ना, हम खुद ही आ जाएंगे आपके पास। और एक चीज़ मैं बताऊं अपने किसान भाई बहनों को कि लाइक जो भी लोग अगर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम 2 एकड़ ज़मीन पे, मतलब जो हम एक कमिट करते हैं कि आपको एटलीस्ट 6.5-7 तक का 7 लाख रुपए तक का हम आपको देते हैं पर 2 एकड़। सो इतना हम आपके साथ शेयर करते ही करते हैं। और मिस्टर सेन, आप जैसे आप पूछ रहे थे ना कि लाइक लेबर कॉस्ट, तो आप अगर देखें तो मतलब 7 लाख रुपए में बहुत आराम से आप लेबर कॉस्ट भी निकाली जा सकती है इसमें से। Correct. सो एक अच्छा अमाउंट एक बचता है फार्मर को। Right, and over to Aditya. थैंक यू सो मच सामंत। मैं जस्ट माइक्रोफोन को जैसे ही अनम्यूट करने वाला था, सामंत ने मस्त मेरे को इंटरप्ट कर छीन लिया, दिया। माइक्रोफोन छीन लिया। but thankfully it was for an audience question, so thanks for that, Samant. And thanks Vishwas ji for coming on our podcast. Long due था, बहुत दिन से ड्यू था। I think 82nd podcast पे आप आए, वो थोड़ा मेरे को odd लग रहा है, but anyway, देर आए सवेर आए। दिस इज माय प्लेजर मिस्टर आदित्य, थैंक यू। विश्वास जी, एक सवाल जो एग्रीकलचर एज अ करियर ऑप्शन में मेरे को आपसे पूछना था, बिकॉज एज सामंत सेड, इस करियर ऑप्शन को आज की डेट में बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर सम रीजन। बट ओवरऑल लाइक मतलब एक होता है कि यूथ का चूज करना, और एक होता है कि हमारा जो परंपरा चली आ रही है, तो परंपरा जिस हिसाब से एग्रीकल्चर इज स्टिल द टॉप करियर ऑप्शन ऑफ इंडिया। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया स्टिल इनटू एग्रीकल्चर। सो ये जो चेंज आया है, इस पर आपका क्या मानना है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है एज अ करियर ऑप्शन नाउ दैट यू आर परस्यूइंग इट? हाँ, तो अभी तो अगर बोला जाए कि लाइक नाउ द पीपल, ऐसा नहीं है, लाइक नाउ मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनटू दिस फार्मिंग। इनफैक्ट कभी कोविड-19 में तो मैंने सुना कि कई लोगों ने तो अपनी जॉब छोड़ के सब्जियां भी बेचना स्टार्ट कर दिया है। ना, तो ऐसा नहीं है, अब तो काफ़ी अवेयरनेस है, बहुत एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, मतलब अलग अलग फील्ड से इसमें आ रहे हैं। एग्रीकल्चर तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इस समय गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है इसमें। गवर्नमेंट फंड भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं। कुछ लोग लाइक किसानों को डायरेक्ट मंडी से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग क्लाइंट से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक, और बस हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर मैं बोलूँगा, अगर एजुकेशन की अगर बात करी जाए तो यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक है एजुकेशन सिस्टम में, कि लाइक ना एग्रीकल्चर को अब हमारे जैसे लोग लाइक जो और कुछ करके आए हैं, लाइक ना, जैसे मैंने माय प्रोफेशन MBA, लाइक मैंने ना एजुकेशन में मैंने MBA करा है, फिनांस में रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में भी काम करा है, ठीक है। लेकिन अगर आज भी अगर मैं सोचूं कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर सोचूं, तो जो एक इमेज क्रिएट होगी वो एक गांव के अंदर एक पुराना सा एक कॉलेज सा मेरे को जो है ध्यान आएगा। क्योंकि ना एक एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है कि लाइक अभी इस पर थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना, थोड़ा वहाँ के स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे बाकी कॉलेजेस होते हैं, ऐसे थोड़ा एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा इन्वेस्ट करा जाए। नो डाउट पूसा वगैरह जैसे तो इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट रूरल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैं अगर गाँव की बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग हो सकते हैं जो मेरे से यहाँ पे मतभेद भी रखते हों, जो मुझसे एग्री ना करते हो, वो बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। गांव में आप जाइए, वहाँ के कॉलेजेस को अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी स्टैंडर्ड उसके आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे आज भी फोकस नहीं करते हैं, लाइक जो उन यूनिवर्सिटीज़ में। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा उस तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी तो दिस इज़ अ बूमिंग सेक्टर, और इस समय तो वैसे ही एसेंशियल सर्विसेज में कुछ और चल क्या रहा है,
यही एक चल रहा है, खाना पीने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, सब्जियां आप बेच सकते हो, कभी भी जाके खाने पीने वाली चीजें बेच सकते हो, बाकी आप कुछ और नहीं कर सकते। तो इसी से समझ लीजिए इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी। वो तो है सर। अच्छा, एक और बात इसी से रिलेटेड पूछनी थी। तो ऐसा कि आपने कहा कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों पर डिपेंडेंट है, और हम हमेशा बहुत रेगुलरली ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि बहुत तकलीफ में बहुत सारे जगह पे किसान लोग हैं। इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई किसान बहन हैं वो अच्छे से कमा सके, अपने लिए बहुत एक स्टेबल अर्निंग ले सके। क्योंकि अगर हमारे देश में, जैसा कि आपने कहा, खाना नहीं होगा, ये तो सबसे बेसिक नीड है। और जो हमारी एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें अगर हमारे जो मेन ड्राइवर्स ऑफ आर इकोनॉमी है जो कि किसान है, अगर वही लोग के पास सस्टेनेबल इनकम नहीं है, तो फिर हमारी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब हमें कैसे, आपके हिसाब से क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे किसान भाई बहनों को एक स्टेबल इनकम मिल सके। हाँ, तो ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बोली। पहली चीज़ तो ना, किसान भाई को एक चीज़ बोलूँगा, देखा देखी के पीछे मत भागिए ना, दिमाग लगाइए। जैसे अभी आपने देखा, मैं ग्राउंड में प्रैक्टिकल बात, अभी रिसेंटली ने भी देखा था बहुत ज़्यादा है करेंगे जो। I think थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन इशू है guys, से so people in the audience probably will wait a while till Vishwas sir returns. Yeah, it should be back in a half a In a minute or minute, so. yeah, in a minute or so. So हाँ, and तब तक I want to make an announcement. So last segment बहुत ही entertaining होने वाला है, and today I have prepared a special something. I've हेलो, prepared a quiz, and that's not my preparation. That's just a quiz I picked up from Farms to Family's recent promotion, and we'll enjoy learning something about organic farming, learning something about our eating habits. So थोड़ा रुकिएगा. I think today the podcast सर might आदित्य extend till, yeah. इज नॉट, सर आदित्य, Yes, Vishal ji. तो I can hear you in a very spaced interval. So कभी कभी आपकी आवाज आ रही है, हाँ, आवाज कट रही है, थोड़ी कट रही है, हाँ जी। तो सामान हाँ जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी परसिस्ट कर रहा है। So guys, what do you say? एक क्वेश्चन पूछ लिया था इसी इंटरवल में। Yeah. Go ahead. Ask a Great. question to the So विश्वास audience. सर, आप ही के प्रमोशन से जो रिसेंट आपने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया था टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, उससे ही मैंने क्विज के कुछ सवाल उठाए हैं। एंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। तो आई विल पेस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज ट्राई एंड आंसर देम इन द कमेंट्स, एंड देन विश्वास सर कैन प्रोबब्ली टेल यू द राइट आंसर एंड टेल अस द राइट आंसर। बिकॉज जब मैंने वो क्विज अटेम्प्ट किया था, मैंने भी बहुत तक तुक्के ही मारे थे। पता नहीं मेरा स्कोर वैसे 7 out of 10 कैसे आ गया, बट हाँ, मैंने काफी हद तक तुक्के मारे थे। मेरे को एक दो के जवाब जेन्युइनली पता थे। तो पहला सवाल, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर रहा हूँ, एंड आई वांट एवरीवन हु इज वाचिंग टू आंसर इट, व्हिच इज, वेट, आई जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चन। ग्रेट, सो आई फाउंड इट अगर आउट। आप चाहें तो वो लिंक भी आप प्रॉपर्ली वो लिंक शेयर कर दें, मतलब बेटर रहेगा। जो हमने गूगल शीट जो शेयर करी थी, अगर वो आप शेयर कर देंगे तो लोगों के पास सारे के सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे अपने आप ही। एब्सोल्युटली, या। सो दोस्तों, मैंने सवाल पोस्ट कर गूगल दिया है। शीट ही अगर आप शेयर चाहें तो वो शीट भी शेयर कर दीजिए। हाँ, I'll also be sharing the Google sheet. I have the link. So, guys, I've shared in the comment section. So, सवाल है, RC poison is found in what kind of vegetables? This is an easy one, organic or inorganic. So, this is the easiest one, I think, to start with. So, what do you say, our co-hosts? What's your opinion on this? RC poison is found in which kind of vegetable, Mr. Sain? Organic or inorganic? Organic. Okay. Samant? I know, मैं खाली खाना खाता हूँ। Take a guess. That's the fun. You cannot escape, man. सामान poison भी खा लेता है, कोई बात नहीं। Let's see. Inorganic. Cool. So before Vishwas sir answers the question, I think, and before I think the audience also guesses. So while the audience guesses, मैं विश्वास सर से वही सवाल दोबारा रिपीट पूछना चाहता हूँ कि जो सर मैंने पूछा था basically, that how can we ensure a stable income for our farmer brothers and sisters? तो पहली चीज़ ये है कि मैं जैसे बता रहा था कि मैं एक समय एग्जांपल दे रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था।
तो मैं बता रहा था कि जैसे कि हम लोग कई बार एक गलती करते हैं कि हम प्याज जैसे भी बहुत महंगा था, तो प्याज की एक्चुअली पौध लगती है, प्याज ना, प्याज एक पहले पौध होती है फिर लगती है। मुझे लग रहा है शायद फिर से जैसे ही मैं बता रहा हूँ ये चीज़, फिर से नेटवर्क का इशू आ रहा था क्या? सही है। नहीं, अभी क्लियर, ठीक। बहुत क्लियर है। यप। अच्छा मैंने आदित्य के दूसरा टाइप का नेटवर्क इशू आ गया। अच्छा। एनीवेज, तो मैंने देखा कि इस समय जो प्याज की इनफैक्ट जो पौध थी ना, वो भी बहुत महंगी बिकी है। मतलब जो 50 रुपए केजी जो पौध बिक रही थी, वो इस समय 300, 350, 400 रुपए तक गई। और लोगों ने, मतलब लोगों के पूरे पूरे खेत लोगों ने प्याज लगाई थी, पौध तैयार करी थी, जो कि बहुत मतलब डिमांड में बिकी है इस बार। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि इससे अगली जो फसल आएगी उससे प्याज ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे सब देखा देखी में दौड़े। तो अब क्या होगा? तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग बिना फ्यूचर को फोकास्ट करे हुए, हम प्रेजेंट को देखते हुए हम फसल लगाते हैं। अब वो जो प्रोड्यूसर निकलेगा, अब आप अकेले तो हैं नहीं उस समय लगाने वाले, क्योंकि आपको देखा देखी में और भी बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अब प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर डिमांड की बात करी जाए तो डिमांड तो स्टिल सेम, भाई पॉपुलेशन जितनी है वो उतनी ही रहेगी। लेकिन अब अगर मान लिया पहले जहाँ पे 10 लोग उगा रहे थे, अब 50 लोग उगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्याज ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा? आपको प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा होगा। ये एक मेजर कंसर्न कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को पहली चीज़ तो बोलूँगा कि जब भी आप कुछ भी लगा रहे हो तो पहले फ्यूचर को देखते हुए लगाओ, ना कि प्रेजेंट के चीज़ों को देख के लगाएं, फर्स्ट। सेकेंड, मुझे लगता है कि सेकेंड में अगर अगर हमें फार्मर्स के लिए और अगर कुछ अच्छा करना है, और फार्मर्स अगर कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो इंडिया इज ब्लेस्ड बाय इन्वायरमेंट, लाइक ना, इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि तीनों सीज़न तीनों टाइम पे मिलते हैं। अगर नॉर्थ में गर्मी है तो हिल्स पे सर्दी है, और पौंडीचेरी उस तरफ चेरापूंजी साइड चले जाए तो वो बारिश है वहाँ पे। तीनों सीज़न आपको तीनों टाइम आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर। तो लाइक ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ में एक प्लस पॉइंट है इंडिया के साथ में। हम अगर वेजिटेबल्स को उस सीज़न के हिसाब से बांटा जाए, हम सारी लाइक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ना बना के अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर चीज़ें पैदा करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, पहली चीज़। और दूसरा क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है, ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। अभी लाइक फार्म्स ऑफ फैमिलीज एक प्रोजेक्ट बना भी रहे हैं अभी इसके ऊपर, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के जो स्टेट्स हैं, हम मतलब जो सब्जियां हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उनको दे सके, वहाँ से कलेक्ट कर सके। जैसे मान लो कि 2 रूम हैं हमारे, एक घर के अंदर 4-5 रूम है। एक को अगर आलू चाहिए तो वो जो दूसरा रूम है जो जहाँ पे आलू का एनवायरनमेंट सही है, वहाँ पे मैंने बोल दिया कि जैसे वहाँ पे जाके आलू उगा लो। अगर उनको अगर टमाटर चाहिए तो अगर ये एनवायरनमेंट अगर सही है तो यहाँ पे टमाटर उग जाएगा। सो लाइक वी कैन एक्सचेंज इट। सो सम हाउ लाइक इस तरीके की चीज़ें हम अगर इसके ऊपर फोकस करें, एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाई जाए इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि हाँ शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें काम कर सकती हैं और इनकम भी ऑब्वियसली बढ़ेगी फार्मर्स की। Great. Now, Vishwas sir, I want you to reveal the answer of the first question. कि RC poison अरे is नहीं formed which प्लीज। type of? You don't want to. मजाक कर रहा हूँ प्लीज, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, आई होप, Okay. आई बिलीव। या Right. प्लीज आप So, बताइए सर। so basically we got a few polls which said B, and I think मेरे ख्याल से तो मेरे को लग रहा है ये सही आंसर है, क्योंकि मेरे को भी ये लग रहा था आंसर is B. Now, I'll give you another question to the audience and our co-hosts. So this is a bit of more complicated question from the previous one. और सर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर हमने इसका सही जवाब दिया, बताओ दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। Great. मेरी टीम इस समय है भी, लाइन पे भी है। सो मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि प्लीज देख लो ना, आदित्य जी का चेहरा देख लो, अगर कॉल आती है तो प्लीज इनको डिस्काउंट देना है। Definitely. So guys, ये जो quiz के questions है, इसके बाद I'll be sharing a Google form link with you. There also the same quiz questions will be there. So अब आपको आंसर भी पता होगा, फटाफट भर दो and you'll get a great discount. So families का तो डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस उसमें प्रो बोनो का कोटा ऐड होके मिलेगा. So you'll get great discounts. So बिल्कुल। right. So the second question, which is a bit more complicated, is in which fruit will you be able to find vitamin A to increase your immune power? Is it banana,
Is it mango? Or is it, what's the third option? Is it cucumber? So banana, mango or cucumber? Which one is tasty? Let's see. Mr. Sen and Samant, I want your guesses before I ask another. Okay, let someone go first. Whatever Career someone oriented. says, I'll go with the other one. Okay, let's see. Banana shake प्रोटीन में मिला के जिम के बाद. Okay. Mango समर में opportunity मिलता नहीं. I'll choose cucumber. Okay, Mr. Sen. I'll also go with cucumber. Great. Now, audience, it's your time to guess. Until Yeah, I think Aditya has faced the problems now. He's automatically left the meeting. Okay, I want to ask Vishwas about a question, Right, sir. which is, अभी क्या होता है कि from an employment point of view, from an economics point of view, Right. India has not done very well. It has not done very well in taking the job to where the people are. So the people are in the farms, people are in the rural areas. So Very India well has, said, sir. India has not done very well in taking the jobs there. So that has led to a lot of people seeking jobs and moving to the urban areas. Mm-hmm. Now, in your model, are you in a position to take jobs to the rural areas, to the farmers, and create job opportunities over there? And when I mean job opportunity, I mean just not a job, employment, but like a job opportunity with a proper wage. Like proper wage bhi hona chahiye. I mean, it's not just like any old job. So, in your business model, do you also address this, or has this been addressed? And if so, इसका कैसा हुआ है? राइट तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी माइग्रेंट लेबर इस समय जो शहर छोड़ के जो गांव में गया है, ठीक है, उसको वहीं पे उसको कुछ काम मिल सके ना, Correct. क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे लोग इस समय शहर छोड़ के गांव जा चुके हैं, बट उनके पास अभी वहाँ पे कुछ कमाने का जरिया नहीं है ना, कि वो कमाएं कहाँ से, पैसा कहाँ से लेकर आए अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम ये कुछ एक कैंपेन भी चला रहे हैं, उसमें हम मीडिया पार्टनर्स बना भी रहे हैं अपने, और कुछ मीडिया पार्टनर्स के साथ में हम इस चीज़ को और भी हम बड़े लेवल पे थोड़ा प्लान कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम एक चीज़ तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक तो मेरा मॉडल बहुत ही सिंपल सा है कि जहाँ पे हम लैंड एक्वायर करते हैं और लैंड एक्वायर करने के बाद में फिर खेती कराते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम खेती की बात करते हैं तो उस लैंड पे अगर 2 एकड़ की बात करूं तो 3 से 4 लोग तो बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे हमें, ठीक है। प्लस हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को भी इम्प्रूव, थोड़ा बढ़ावा देने की। जैसा कि मैंने बताया कि अगर उस ज़मीन की अगर लेडी अगर ओनर है तो हम उसके साथ में रेवेन्यू हम कुछ एक्स्ट्रा शेयर करते हैं उसके साथ में, सो दैट हम इम्प्रूव कर सके वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, राइट। दूसरा हम लोग एक काम और क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लिया कि जैसे उस खेत में हमने कोई चीज़ बोई, ठीक है, और वो क्यारी अगर नहीं बुक अगर हो पाती है या कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकें। तो हम लोगों ने क्या करा है, हर गांव में हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को नाम दिया है संचालिका। संचालिका कौन होती है? संचालिका एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन होती है, एक स्पोक पर्सन होती है, जैसे एक लेडी होती है, ठीक है, जो फार्मर्स का वहाँ पे और जो रूरल, तो एक तो हो गया कि लाइक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं फार्मिंग में काम करा के, दूसरी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को लघु उद्योग में कन्वर्ट करके। लघु उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो हम अब जैसे मेरे को अगर डिलीवरी करनी है, सो आई नीड अ बैग ऑल्सो, तो वो बैग हम उनसे डिज़ाइन करवाते हैं। वो बैग्स काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर मेरे क्लाइंट्स हैं तो खरीद भी सकते हैं, और तो बैग्स वगैरह जो है डिज़ाइन करवाते हैं। प्लस अचार वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर घरेलू चीज़ें, और जैसे आपकी हल्दी आती है, ठीक है, हल्दी पीसना ना, धनिया पीसना, इस टाइप की चीज़ें, तेल निकालना, तो इस टाइप की छोटे छोटे जो चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मान लिया अगर मैंने कहीं पे हल्दी लगाई है, तो अब आजकल जो हल्दी आ रही है वो आपकी पैकेट क्या आ रही है नहीं पता आपको कैसी है क्या है,
जबकि मुझे याद है कि मेरे घर पे आज भी हल्दी को हमारे कच्ची हल्दी ली जाती है और उगाई जाती है खेत में, फिर उसको बॉयल करके फिर सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस मुझे पता है कि शहर के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस हम पूरा वहाँ पे कर सकें। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस अर्बन साइड में भी हमने काम करा है, हर सोसाइटीज़ में हम एक स्पोक पर्सन बना रहे हैं, एक लेडी को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि वहाँ की लेडीज़ सोसाइटीज़ वगैरह को लाइक थोड़ा प्रमोट करती हैं फार्म्स फैमिली से कनेक्ट होने के लिए। तो वो एक अलग मॉडल है हमारा। सो इस There तरीके you से सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। So there you have it. So you have tweaked your business model and thought a byproduct and like packaging and transportation and making oil perhaps, or making other things out of the produce, is what you're looking at to engage through a certain employment process for the people who are in the rural areas and the farm. राइट They're taking the jobs to the rural areas instead of bringing the worker to the jobs which is there in the urban and semi-urban areas. राइट। Thank you. Yeah, Aditya, you're back. Yeah. So I think I posted the question in the comment section and we are getting a few different answers, which is great. So different answers मतलब एक ना एक तो गलत है, means we are learning something. राइट। So guys, I have also so Samant, I have sent you a comment. If you can paste that in the comment section. So guys, I have we are pasting in the comment section a link to a quiz, right? So अभी तो हमने 2 सवाल पूछे, but there are many more interesting questions in this quiz which are similar in similar nature, and which will teach you a lot about healthy eating habits. Plus, you'll get a lot of fun. थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस और बहुत डेली लाइफ से रिलेटेड है, सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा, आपको हर सवाल का कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट रहेगा. So I'm posting that in the comment section, and definitely do watch it, try it out, and see how much of a score you get. So Vishwas sir, last question from you. राइट। What is your advice for the upcoming agricultural science graduates or the upcoming agricultural professionals of India, या फिर किसान भाई बहनों के लिए जो भी एग्रीकल्चर की फील्ड को डिफरेंट कैपेसिटीज में ज्वाइन करेंगे, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाँ, सो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है ना। ये मतलब लोग अगर हैं तो खाना चाहिए ही चाहिए, और अब तो और भी लोग अवेयर हो रहे हैं, अब खाने के साथ में लोग हेल्दी खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अभी ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर टेक वालों की बात करें तो लाइक टेक में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कई लोगों ने वो एक थर्मामीटर बनाया है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं आपके सॉइल में कितनी नमी है, कब आपको पानी डालने की ज़रूरत है। बहुत सारी रिसर्चेज ऑलरेडी चल रही हैं, किससे कि सब ड्रोन से आप स्प्रे कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ पहले नहीं थी, आप फार्मिंग को कितना फास्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी चल रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत फंड भी दे रही है इस समय। और आप इसी से समझ लीजिए कि कोविड-19 पीरियड में भी अगर एक चीज़ है जो कि फ्री है, वो यही है कि लाइक ना खाने वाली चीज़ें, एसेंशियल सर्विसेज के लिए सभी को अलाउ करा हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ कम टू, लेकिन हाँ, जो टाइम पे आ जाएगा इस बिज़नेस में वो मार्केट का लीडर होगा। अगर आप लेट करते जाएंगे तो चीज़ें मिस होती जाएंगी आपसे। सो बेटर है टाइमली आप आइए इस सेक्टर में, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, हेल्दी कंपटीशन रखिए। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है, हेल्दी कंपटीशन रखिए। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन के साथ में इसको आप आगे बढ़ाइए और जुड़िए, सबको जॉब रोज़गार दीजिए। और इस समय लोगों को ज़रूरत है, इस समय लोगों को ज़रूरत है खाने की, और इस समय बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर है उनको ज़रूरत है काम की, उनको जॉब दीजिए वहाँ पे, उनके लिए जॉब क्रिएट करिए वहाँ पे। तो Yes, sir. So this is I'd like to say. Thank you. Yeah. I Thank you just so want much, to Vishwas say ji. something, Yeah. one last few words, Sure. 3 words, 4 words Sure. on what Vishwas said. Uh, Today on the 82nd, right? Today is 82? 81. On the 81st episode, we have actually demonstrated through Mr. Biswas Gupta how technology can create jobs and more employment. Right, sir.
Thank you. Aditya. So with this, I would want to thank Mr. Vishwas Gupta so very much for gracing our podcast with his presence and for persisting with all the tech issues that me, Samant, and him were facing throughout this call. We kept I am exempted. we kept dropping one after the other, and thanks, Samant. So yeah, you can take it over now. Yep. Firstly, thank you so much to Aditya and Mr. Sen. बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट. ऑफ कोर्स वी डिड फेस फ्यू प्रॉब्लम्स. थोड़ा गाड़ी शुरू होने में प्रॉब्लम लग रहा था, स्कूटर को थोड़ा बेंड करना पड़ा, बट लेकिन मैंने एक कोट बनाया था, यू नो, थ्रू द कॉन्वर्जेशन. ऑफ कोर्स आई वाज टेकिंग अ बैक सीट थ्रू द लेटर पार्ट. और एक अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, एंड दिस आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर तेलुगु मूवी, but I want to, you know, read a quote that I just created. An employee's work benefits himself. An actor's work benefits his fans. A father's work benefits his family, but a farmer's work benefits humanity. Wow. And with that being Wonderful. said, विश्वास जी, थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स पहले बुलाना था आपको, दैट वाज डेफिनेटली डन, बट वी आर सो ग्लैड एंड ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट फाइनली. एंड you. definitely we'll try to get another one going sometime soon. Sure. Definitely, because agriculture is not a topic, it is our life. And ये कोई conversation Very नहीं है well where said. you have a panel discussion, you know, you try to have a discussion and you end it after at 5 p.m. It's part of our life, and the discussion needs to keep on happening. So Vishwaji, thank you again. Aditya, Mr. Sen, and the audience members, thank you for watching. Now stay home, take care, stay safe, wash your hands, and like and follow our Facebook page and turn on post notifications to get notified when we do go live. Subscribe to our YouTube channel to catch our live streams on entrepreneurship, and we'll see you tomorrow at the same time, 6 p.m. with another guest. Take care now. Bye bye. See you. And एक चीज, हेल्दी खाओ सब लोग, हेल्दी खाओ, खाने पे ध्यान दो.